Good afternoon, everyone. I, Shrunkal Gotmare, Secretary of Elan Forum, welcome you all in our session on resume writing and interview techniques by Mr. Hitesh Diwani sir. Resume writing is one of the first priority of the interviewer given by a campus for selecting employees for their organization. Many of us have an idea about how to write resume writing creatively. So, here we come up with the live session with different interview techniques. Now, I would like to welcome our speaker, Mr. Hitesh Diwani sir, founder director of HR Mentor. Welcome you, sir. Now, I would like to welcome sir on a dais, and I request you all to turn off your mic till the session will be ended. Please, sir, continue further. Right. Thank you so much, Shrunkal. Uh, Very good evening to everyone, and thank you for the opportunity to interact with you all. I hope everyone is keeping safe and you are taking the necessary precautions. To begin today's session, I would first like to have an understanding of which year do you all belong to. Of course, the electrical department, but which year? So, are you in the third year or in the final year? If you can write down quickly in the chat, right? Let's make it a bit interactive as well, right? Okay. So third year, all of you third year. So they are final year. Okay. Okay. Fair. Oh, so they are second year students first year. Okay, so it's a mix of all the students as I see. Perfect. Perfect. Great. Right. So this session would be, of course, more relevant to the third year students and the final year students. Right. So the second year students and the first year students will have some time to do some brainstorming and then come up with a very strong resume or work upon what answers will you have for your interviews. Right. Now, very quickly, getting on to the interviews first. सबसे पहले हम लोग interviews के बारे में बात करते हैं, right? Very quickly in the chat, if you can write down which is the toughest question in an interview, right? It's the toughest and the easiest question. Toughest according to the interviewer, and I mean the easiest according to the interviewer and the toughest according to the interviewee, right? Very quickly, what's that question? तो interviewer को तो बहुत आसान लगता है, मगर हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है. So you can write down and chat very quickly so that I have an understanding of कि हमें क्या लगता है. Perfect, Suraj. Absolutely, Prajwal, right. Correct. Tell me something about yourself. Introduce yourself. Right. Neeraj, according to you, why should we hire you? We'll come to that question as well. Absolutely, Ruchika. Rushali, great, great. I'm happy there are people interacting. Lovely. Right. So let's get into the very first question, the easiest and the toughest question. Introduction. Right. So अब introduction की अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या जाती है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं. जब भी कोई मुझसे पूछता है कि यार, मतलब किसी कैंडिडेट से पूछता है कि यार प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो सबसे पहले मन में सवाल आता है कि क्या इंट्रोडक्शन, तुम क्या सुनना चाहते हो, राइट? मुझे आराम करना पसंद है, पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं. मतलब क्या तुम क्या सुनना चाहते हो, सच सुनना चाहते हो, राइट? इसलिए हम लोग कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्या जवाब दूं इस क्वेश्चन पर, राइट? और हम में से ज्यादातर लोग इंट्रोडक्शन में अपना नाम, आप कहाँ से हो और आप क्या पढ़ रहे हो, यहाँ पे आकर खत्म हो जाते हो, राइट? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज हितेश. I'm from Nagpur and I am pursuing my engineering and electrical department in the third year from SB Jain College of Engineering and Technology. Right? यहाँ पे आके हमारी कहानी खत्म हो जाती है, राइट? अब तुम एक चीज समझने की कोशिश करो कि पहले तो वो ये सवाल पूछ क्यों रहा है. हम कंफ्यूज क्यों होते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि हम जवाब नहीं दे सकते, हमें अपने बारे में कुछ पता नहीं. दिक्कत ये कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सवाल हमसे पूछ क्यों रहा है, राइट? कई लोग सोचते हैं कि वो सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट करना चाहते हैं, राइट? वो लैंग्वेज देखना चाहते हैं हमारी, राइट? अगर तुम्हें लैंग्वेज देखना है तो ये 10 मिनट में समझ में आने वाले नहीं. ऊपर से मैं
क्या ही बता दूंगा, मैं तो आंसर रट के आया, हो सकता है किसी की लैंग्वेज एक्चुअली बहुत खराब हो और आंसर रट के आए और इंट्रोडक्शन में ठीक ठाक बोल दे, राइट। सो लैंग्वेज एक क्वेश्चन के बेसिस पर टेस्ट नहीं, और इसलिए तो वो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ नहीं बोल रहा। और क्या हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा, और क्या हो सकता है जो टेस्ट करना चाहते हैं? कई लोग सोचते हैं कि यार सर हो सकता है कि वो देखना चाहता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। वो तो पूरे इंटरव्यू में चेक होता रहेगा, राइट। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, एक तो मेरे ऊपर इतना प्रेशर है ना, वैसे ही आजकल नौकरियां लग नहीं रही है, राइट। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, राइट। एक तो ये सब खराब ही होगा ना रोशाली, प्रज्वल, जैसे आप लोग लिख रहे हो। आप एक चीज समझो यार, मेरा बॉडी लैंग्वेज और मेरा कॉन्फिडेंस तो फिलहाल तो हिला हुआ है ना, कोविड चल रहा है, राइट। कोविड चल रहा है और नौकरियां है नहीं, मतलब मुझे तो कॉल्स ही नहीं है इंटरव्यू के। ये पहला मान मान मुझे कॉल आया है, मैं डरा हुआ हूँ, है ना। घर में मैं लाइव मतलब एक ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहा हूँ, उसमें यहाँ से मैंने मम्मी से दही शक्कर खाया, मैं यहाँ बैठ गया, कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, यही एक कमरे से दूसरे कमरे में आने के लिए दही शक्कर खा रहा हूँ, इतना डरे हुए हूँ कि यार कुछ तो नौकरी लग जाए, घर बैठे ही काम हो मगर काम तो लग जाए, कुछ भी पैसा मिले, काम तो मिल जाए, राइट। इतना मैं ऑलरेडी स्ट्रेस हूँ, उसके अंदर मैं इतने सारे मन में सवाल लेके बैठा हूँ, और तुम मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो अनफेयर हो गया, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक कंपनी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि एक कैंडिडेट उनके हाथ से इसलिए छूट जाए क्योंकि वो कॉन्फिडेंस में लो है। तो एक ही समझो, जिस तरह की कंपनी आई है, मतलब इट्स नॉट अ बी स्कूल, अ बी स्कूल वुड सर्टेनली चेक योर कॉन्फिडेंस, राइट। व्हेन वी टॉक ऑफ इंजीनियरिंग कंपनीज, राइट, बी इट आईटी, बी आईटीएस, वो तुमसे सेमी टेक्निकल और टेक्निकल काम कराने वाले, राइट। तुम शायद क्लाइंट से आने वाले 1.5 साल इंटरेक्ट भी नहीं करोगे, और जब तुम कंपनी में 1 साल रह रहे हो, तुम्हारे कॉन्फिडेंस का लेवल अलग ही होगा, राइट। तो ऐसे केस में कॉन्फिडेंस टेस्ट करना उनका मुद्दा है ही नहीं। वो चाहते हैं कि टेक्निकली साउंड लोग आए, ऐसे लोग हैं जो हमारे प्रोसेस को समझ पाए, ऐसे लोग हैं जिन्हें हम समझ के उठा सके, जो सिंसियर हो, है ना। ये सारी चीजें उनकी इच्छाएं होती है। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस टेस्ट क्यों करें? ऑन द कॉन्ट्ररी इसका उल्टा हो रहा होता है। कई बार वो देखते हैं कि कैंडिडेट थोड़ा डरा हुआ है, राइट। कैंडिडेट डरा हुआ है और उसे कॉन्फिडेंस देने के लिए वो ये सवाल पूछता है। हम तुम्हें जज नहीं कर रहे, राइट। तुम अपने बारे में बोलो यार, कुछ शुरुआत तो करो, आइस ब्रेकिंग जैसे हम कहते हैं, राइट। तो कई बार आइस ब्रेकिंग के लिए ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस टेस्ट करना शायद इतना प्राइमरी नहीं है फॉर एन इंजीनियरिंग कंपनी, राइट। तो फिर सर क्या है? they actually want to see how much do you really know about yourself. Of all the reasons, ये सबसे प्राइमरी रीजंस में से एक होता है, राइट। वो एक्चुअली देखना चाहते हैं कि तुम अपनी कंपनी, तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, तुम इंजीनियर हो, ये सब तो तुमने बाद में सुना है, ग्रेजुएशन में आके सुना हमारी कंपनी का नाम, राइट। 4 साल से ही पढ़ रहे हो, मगर अपने आप के साथ तुम पिछले 20, 21, 22 साल से, और पिछले 20, 21, 22 साल में अगर तुमने खुद को 3 लाइन जाना है, उस कंपनी को क्या खाक जानोगे मार्केट में 8 साल पहले आई तो तुमने उसका नाम पिछले साल सुना था। तो मैं मेरी वाइफ के साथ एक बैगेट करके एक स्टोर है, वहां गया था। बैग्स, क्लचेस, वॉलेट्स मिलते हैं, राइट। वहां पर दूर एक ऐसा ग्लॉसी ग्रीन कलर का बैग पड़ा था। अब मेरी बीवी ने उस स्टोर कीपर को बोला, भैया ये क्या है? सरप्राइज हो गया, मुझे तो बैग दिख रहा था, राइट। तो पहले मैंने अपनी बीवी को देखा, फिर बैग को देखा, फिर स्टोर कीपर को देखा, बता भाई क्या है, राइट। मतलब क्या बैग है, क्या पूछ रहे हो तुम? मैं तो स्टोर कीपर गया, तो बैग उठाया, मैडम के सामने रखा, बोला मैडम सुबेट लेदर, मतलब वो बेटे। सो प्रैक्टिकली जब मेरी वाइफ ने उस स्टोर कीपर को बोला भैया ये क्या है, बैग तो उसको पता था बैग है, तो उसने इंडायरेक्टली उसको कहा भैया इसे बेचो, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, भैया इसे बेचो। So when an interviewer ideally asks me, tell me something about yourself, the primary agenda has to be sell me yourself, pitch me yourself, give me reasons why should I hire you. अब ये हो कौन तुम, क्यों तुम्हें मैं अपने 15 मिनट दूं? इसलिए कई ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि एक इंटरव्यू में लगभग 80% ऑफ रिजेक्शंस इसी सवाल पे हो जाते हैं। माइंड रिजेक्शंस, नॉट सिलेक्शंस। इससे तो आगे बात नहीं करनी ज्यादा, ये तो रिजेक्टेड है, ये तो मेरे काम का नहीं है। ये आइडियाज जो हैं,
ये इंट्रोडक्शन में ही आ जाते हैं। क्योंकि एक चीज समझो, हमें जीवन भर, तुम जो भी 75 लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, हमने जीवन भर ये तो सुना ही है कि इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन पूछते हैं। बाकी और मुझे पता नहीं कि वो क्या पूछते हैं, मगर मुझे ये पता है कि इसके चांसेस बहुत हाई हैं कि वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछे। तो अगर मुझे ये पता होने के बावजूद इतने जमाने में मैंने इस क्वेश्चन को अगर प्रिपेयर नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या है? या तो मैं ऑलरेडी एक इनसिंसियर कैंडिडेट हूं, या तो मैं इस कंपनी को लेकर सीरियस नहीं हूं, वरना मैंने अपना होमवर्क किया होता। तो इंट्रोडक्शन ही नहीं दे पा रहे हो यार, तुम समझो इतना सैड सिचुएशन है। एंड हेंस इट बिकम्स वेरी क्रूशियल कि आप अपना इंट्रोडक्शन सही दे पाओ। तो सर मतलब मैं अपने आप को सेल कर रहा हूं इंट्रोडक्शन, बिल्कुल सही। तो सर मेरी पिच क्या हो, क्या बोलूं जो इम्पैक्ट पड़े, राइट? अब ऑफ कोर्स अपना नाम तो बताओगे तो, मगर नाम बताने के भी तरीके होते हैं। सर आई एम हितेश, सर माई सेल्फ हितेश, सर दिस इज हितेश, सर माई नेम इज हितेश। अब इन चारों में से कुछ सही है गलत होता है क्या? यस या नो टाइप करो। गलत होता है तो यस, आई एम हितेश, माई सेल्फ हितेश, दिस इज हितेश, माई नेम इज हितेश। इन चार में से ऑप्शन कौन कौन सा गलत होता है? अगर गलत होता है तो, और अगर नहीं होता है तो नो टाइप कर दो। किसी भी तरीके से बोल सकते हैं सर, आई एम बोलो, माई सेल्फ बोलो, दिस इज बोलो, माई नेम इज बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रज्वल सेज 2 गलत होता है सर, सूरज ऑल्सो सेज 2 गलत होता है, राइट? दुष्यंत सेज 3 गलत होता है, राइट? माई सेल्फ तो गलत होता है, राइट? सो ज्यादातर लोग 2 3 बोल रहे हैं। सो आप एक चीज समझो, 1 2 3 तीनों गलत होते हैं। माई सेल्फ हितेश, माई सेल्फ मतलब मैं, विजय, दीनानाथ। क्यों माई सेल्फ नहीं? दिस इज हितेश, मत तू कौन? दिस इज हितेश मतलब ये हितेश, गलत है ना लैंग्वेज? आई एम हितेश नहीं, आई एम अ बॉय, आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ टीचर, आई एम अ हस्बैंड, अनफॉर्चुनेटली। आई एम मतलब मैं ये हूं, है ना? जैसे हमारा मीटिंग भावना भी अटेंड कर रही है, उसने बोला आई एम भावना। तुम फीलिंग्स हो ऐसा। सो आई एम साक्षी, तो तुम विटनेस हो ऐसा। तो आई एम गलत हो गया ना, एक ही सही है, माई नेम इज। इससे फर्क क्या पड़ता है? कुछ नहीं, फर्क ये पड़ता है कि तुम ग्रामेटिकली सही लैंग्वेज यूज करो, वो ज्यादा अच्छी बात नहीं। प्रॉब्लम क्या हो जाती है? तुम बोलते हो कि सर माई सेल्फ हितेश, और 5वीं लाइन तुम्हारी होती है सर माई स्ट्रेंथ इज माई कम्युनिकेशन स्किल्स, आई एम गुड एट इंग्लिश। गलत हो जाता है, ठीक है? सो ऑफ कोर्स माय नेम इज, नाम बताया, नाम के बाद क्या बताऊं? हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हम डायरेक्टली टेक्निकल चीजों में चले जाए, मतलब हम डायरेक्ट इंजीनियरिंग के बारे में बात करने लग जाए, बिकॉज अब तक कुछ रैपो बिल्ड ही नहीं हुआ, अब तक नाम बताया तो मन में डर बना हुआ ही है ना। हमारे मतलब मेरे कई सालों के एक्सपीरियंसेस में ऐसे कई कैंडिडेट्स आए जो थोड़े डरे हुए थे। उसमें से एक कैंडिडेट आई, बैठी सामने, मैं बोला, अब मैंने, हम सब लोग उसको पता है ना कि इंट्रोडक्शन पूछता है, मैंने उससे इंट्रोडक्शन पूछा ही नहीं। मैंने उसे सबसे पहला सवाल पूछा, बेटा 8085, क्विकली टाइपिंग इन द चैट बॉक्स 8085 बोला तो हम क्या बोलेंगे? अगर इंटरव्यूअर तुम्हारे सामने बैठा है, तुम जाके बैठे हो, तुमसे पहला सवाल पूछा बेटा 8085, तो 1 वर्ड में तुम क्या जवाब दे दोगे उसको? एनीवन? परफेक्ट, माइक्रोप्रोसेसर। परफेक्ट, माइक्रोप्रोसेसर, राइट? कितना सिंपल है ना, सॉर्टेड है। अब वो आई बैठी, मैंने बोला बेटा 8085, अब वो बोलती है सर 764291। बोले क्या, ये सर नंबर पूछ रहे हैं पागल। and this student was an 8.5 CGPA in her graduation, so certainly not stupid,
student was certainly not stupid but scared, right? तो इसलिए हम नहीं चाहते कि हम डायरेक्टली पिच इन करें कि मेरा इंजीनियरिंग कैसा, ये कैसा, वो कैसा। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हम थोड़ा रैपो बिल्ड कर लें। अब रैपो बिल्ड करना है, तुम बताओ तुम कहाँ से हो, राइट? अब तुम में से कई लोग होंगे, वेरी क्विकली राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, तुम में से कई लोग होंगे जो नागपुर से नहीं है, राइट? आप कहाँ से, एक बार चैट बॉक्स में टाइप करो, राइट? अब तुम सोचो कि अब तुम उसको बता रहे हो, सो श्रृंखल इज फ्रॉम कलमेश्वर, जो नागपुर से नहीं है। मयूर इज फ्रॉम नागपुर, बट पीपल नॉट फ्रॉम भंडारा, अमरावती, परफेक्ट, राइट? और दूर, राइट? गोंदिया, राइट? आउटसाइड मतलब किधर? चलिए, उमरेड, खापरखेड़ा, साकोली, भंडारा, कामठी, so not residents of Nagpur, right? So what if Kerala? Oh my God, Akhil is from Kerala. What are you doing here? Anyways, so just imagine Akhil, let's say तुम इंटरव्यूअर को बोल रहे हो कि sir, good morning sir, my name is Akhil, I'm basically from Kerala, but I've been staying in Nagpur for the last 4 years pursuing my engineering. क्या तुम उसे इनडायरेक्टली ये नहीं बोल रहे हो कि सर आई एम अडैप्टेबल? सर मैंने 2 अलग अलग माहौल में रहकर देखा है। तुम सोचो, कंपनीज के अंदर कई बार ये डर होता है कि यार ये कैंडिडेट ये तो लूं मैं, पर ये भाग ना जाए यार, राइट? यहाँ का वेदर क्लाइमेट सूट नहीं किया, इनको सारा भाग जाते हैं। इनको भी अपने टारगेट्स होते हैं। The moment you pitch in things like these, sir, I'm basically from Amravati, but I've been staying in Nagpur for the last 4 years. सर मैंने 2 अलग माहौल में रहकर देखा है, राइट? तुम सोचो कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज अपने आप चला गया। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, वो अपने आप कन्वे हो गया, राइट? एंड दे वुड आल्सो आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट वेयर आर यू फ्रॉम, कितने हाई चांसेस। किसी ने बोला कि, जैसे किसी ने बोला आई एम फ्रॉम अमरावती, राइट? तो पूछेगा ना यार अमरावती को उसका नाम कैसे मिला? नहीं, टेल देम देयर इज एन अंबादेवी टेंपल, व्हाटएवर द स्टोरी बी। हो सकता है तुम जहां से हो वो पर्सन वहां से निकल के आए, उसकी वाइफ वहां से, उसके घर का कोई, उसने अपनी पढ़ाई वहां के, कुछ ना कुछ रिलेशन निकल आए, या कुछ ना कुछ जानकारी उसके पास हो, या कुछ क्यूरियोसिटी। Someone from Gadchiroli says I'm from basically from Gadchiroli but staying in Nagpur, no, there's curiosity। मतलब वहां पे सही में वो होता है क्या जो सब इस तरह लाइव शूट आउट, इतना स्कैरी पिक्चर, इज इट रियली? अचानक देखो कंफर्ट कितना धीरे धीरे सेटल इन हो रहा है, राइट? सर मैं तो बाहर से नहीं हूं, मैं तो नागपुर से हूं, तो मैं बताऊं क्या कि आई एम फ्रॉम नागपुर? मतलब इसमें तो मेरा तो अडेप्टेबिलिटी दिखेगा नहीं, मगर फिर भी बताओ क्यों? क्योंकि अब तो देखो इंटरव्यू जो होता है वो इंटरव्यूअर के हिसाब से नहीं होता, वो इंटरव्यूवी के हिसाब से होता है, राइट? उसके पास तो अपने कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना। अब मैं रुचिका को यहाँ पे बोल दूं कि भैया बास्केटबॉल के बारे में बताओ, या मैं मंदार पाल से यहाँ पूछूं कि भैया चेस कैसे खेलते हैं, क्वींस गैम्बिट क्या होता है, वो क्यों बताए भाई? उसने कभी जिंदगी में चेस नहीं देखी। तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी थोड़ी पूछ सकता हूँ। तुमको अपनी इलेक्ट्रिकल कंपनी में मुझे लेना है, या ITES बेस्ड कंपनी में विप्रो के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तेरे को करना भाई चेस से, तेरे को भेजेंगे वहां। उनका काम है ये टेस्ट करना कि तुम जिन चीजों में क्लेम कर रहे हो वो उसमें अच्छा हो, वो ये टेस्ट करते हैं कि तुम जेन्युइनली उनमें कितने अच्छे हो। कई बार तो सिर्फ स्ट्रेस इंटरव्यू बनाने के लिए भी इन चीजों को उठा लिया जाता है, राइट? मतलब तुम ये रास्ता छोड़ते हो कि भैया ये पूछो, ये पूछो, ये पूछो, ये पूछो, ठीक है? सो तो मैं बोलता हूँ सर आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन नागपुर, आई बीन हियर ऑल माय लाइफ, ऐसी चीजें जब मैं बोलता हूँ तो तुम उसको बोल दो कि भाई, मतलब इनडायरेक्टली बोल दो कि भाई पूछ नागपुर के बारे में, राइट? पूछता है ऑलराइट व्हाट इज नागपुर फेमस फॉर बडी, राइट? हम क्या जवाब देते हैं? ऑरेंजेस। अबे वो तो केरला वाले को भी मालूम नहीं है ना, राइट? तुम नागपुर से हो, तुम बताओ ना ऑरेंजेस छोड़ के क्या जो तुम्हें पता हो, राइट? हेडक्वार्टर्स ऑफ RSS, द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म, द टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, द विंटर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, Gutti Bori Industrial Estate, Asia's largest industrial estate, Kalanna Fruit Market, Asia's largest fruit market,
NADT, National Academy of Direct Taxes, Training Center of IRS Officers in India, RBI, जो भी सब कुछ है, प्लीज उतारा तरी पोहा और शत्रु से ऊपर उठो, है ना? अच्छी चीजें बोलो और ऐसी चीजें बोलो जो तुम्हारी पर्सनालिटी से रेलेवेंट हो। अब हितेश सर ने बोला था इंटरव्यू के सेशन में कि ये बोलना, तुम उसको बोलकर आगे, ऐसे नहीं होता है। तुम बोल हेडक्वार्टर्स ऑफ आरएसएस, उसने पूछा ओके सो व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ आरएसएस, ये चीटिंग है। हितेश सर ने इसके आगे का नहीं बताया था, राइट? बिग प्रॉब्लम। जो चीजें बोलोगे वो चीजों पे प्रिपेयर रहो, समझ रहे हैं? सो तुम्हारा नाम, तुम कहां से हो, इसके बाद तुम अकैच पे हो, राइट? अब अकैच में क्या बताएंगे? कॉलेज का नाम बताएं या ना बताएं? यस और नो, वेरी क्विकली इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स शुरू रखना बंद मत करो। कॉलेज का नाम बताएं या ना बताएं? सर मैं एसबी जैन से हूं। प्रज्वल says yes, Prachi says yes, Akshat says no, Shankal says yes. Okay, okay, नहीं बताएंगे। एक चीज समझो, पॉज। कंपनी तुम्हारे कॉलेज में आ रही है, कंपनी एसबी जैन में आ रही है, ठीक है? तुम एसबी जैन में बैठे हो, तुम एसबी जैन के हो और तुम उसको बता रहे हो सर मैं एसबी जैन से, फिर वो क्या बोलेगा? खाइला ऐसा क्यों बताना उसे एसबी जैन? कोई रीजन ही नहीं है ना। अच्छा सर मेरे यहाँ कंपनी नहीं आ रही, तो अभी तुम्हारे आ ही नहीं रही है वो कंपनी, तुम कहे बताओगे सर मैं उस कॉलेज से हूं जहां पे आप नहीं आए थे, तो और नॉनसेंसिकल होगा ना, राइट? तो कॉलेज का नाम नहीं बताएंगे, तो स्कूल का नाम नहीं बताएंगे। अब वो बेचारे बैंगलोर से है, तुम उसको बता रहे हड़स, बोले क्या हड़स, राइट? मेक्स नो सेंस। सर क्या बताओ, ब्रांच बताओ अपनी, तुम समझो, तुम सब इलेक्ट्रिकल वाले हो, मगर तुम सारे के सारे इलेक्ट्रिकल कंपनी में तो नहीं बैठोगे ना। यू ऑल सेट इनटू वैरायटी ऑफ कंपनीज, कुछ बिजनेस एनालिस्ट कंपनी में बैठेंगे, कुछ आईटी कंपनी में बैठेंगे, कुछ आईटीएस कंपनी में बैठेंगे, कुछ कोडिंग कंपनी में बैठेंगे, कुछ जनरल मैनेजमेंट कंपनीज में बैठेंगे, हो सकता है कुछ इलेक्ट्रिकल कंपनीज में भी बैठे, राइट? बट देन नॉन इलेक्ट्रिकल, नॉन कोर कंपनीज में जब तुम बैठते हो, तो उसके पहले तो वहां पे सिविल वाला भी होता है, वहां मैकेनिकल वाला भी होता है, वहां इलेक्ट्रिकल वाला भी होता है। अब उससे पहले वो सीएस कंप्यूटर साइंस वाला बंदा वहां बैठा था, 5 सीएस वालों के बाद तुम्हारा नंबर आया 6वां। अब उसके दिमाग में सीएस के क्वेश्चन ही चल रहे हैं ना, वो सीएस के क्वेश्चन ही पूछ रहा था। तुम गए बैठे, उसने बोला बेटा व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तुमने बोला ये गाली नहीं ऐसा, राइट? मेरी रैगिंग लो सर, मगर कम से कम मेरी ब्रांच पे तो लो। मुझे लगे तो मैंने पढ़ाई मेरे कोर्स की नहीं की, या मुझे आए तो मेरे कोर्स का पूछो कुछ। इसलिए ये इंट्रोडक्शन देना कि भैया मेरी ब्रांच क्या है वो जरूरी है। फिर यूनिवर्सिटी बताओ, अगर तुम्हें ऐसा बताना ही है तो यूनिवर्सिटी बताओ, इफ एट ऑल। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी से होते हैं, तुम आरटीएमएनयू से, तुम बताओ कि मैं आरटीएमएनयू से। कई लोग होते हैं जो जैसे दूसरे कॉलेजेस जो हैं हमारी विसिनिटी में, वो ऑटोनॉमस कॉलेजेस के होते हैं, राइट? सो बिकम्स अ ट्रबलसम थिंग। अपनी यूनिवर्सिटी बता दी, चलिए। उसके बाद क्या बताओ सर? अपने परसेंटेज। अगर तुम यूनिवर्सिटी टॉपर हो, ब्रांच टॉपर हो, कॉलेज टॉपर हो, ऐसा कुछ हो तो हाँ बताओ भैया, वरना क्या मतलब है? तुम्हें 74 लाख, तुम्हारे हिसाब से तुमने तीर मार लिया है, समझो, उसके हिसाब से नहीं। वो पूछेगा तुमसे पहले अभी एक 76 वाला के गया, तो क्या मुझे उससे लेना चाहिए? फिर तुम बोलते हो कि सर परसेंटेज से क्या फर्क पड़ता है, बोले फिर बता रहे को रहे हैं, तो सर परसेंटेज भी नहीं बता रहा, सर एकेडमिक्स में बताओ क्यों? अरे भैया यहाँ पे 3rd 4th ईयर वाले हैं, तुम लोगों ने कभी कोई प्रोजेक्ट किया नहीं किया है? तुम लोगों ने इंटर्नशिप किया है? सर किया है। परफेक्ट। सो नीलेश्वर से किया है, तो बाकी सब लोगों ने भी किया ही होगा। इंटर्नशिप्स भी की होगी, प्रोजेक्ट्स भी किए होंगे, ट्रेनिंग्स भी की होगी, लाइव ऐसा वर्कशॉप्स भी किए होंगे। ये सब बताओ ना यार।
तुम सोचो एज एन इंजीनियर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस के नाम पर क्या है? ये सब इंडस्ट्रियल चीज है ना, प्रोजेक्ट्स, ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, कुछ भी जो ऑनलाइन तुम लोगों ने वर्कशॉप्स किए होंगे या कोई मॉड्यूल्स कंप्लीट किए होंगे या कोई सर्टिफिकेशंस किए होंगे, ये सारी चीजें बताने लायक है यार। और हम कभी ये सब बता ही नहीं रहे होते, हम कभी भी इन पे फोकस नहीं कर रहे होते। हम क्या बताते हैं, मेरा नाम क्या है, मेरी हॉबी क्या है, मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। अबे तो मुझे तुम अपने बेटे की तुमसे शादी करानी है, क्या करूं मैं इसका काम तो है नहीं मेरा। सर मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता हूं। तो तुम समझो प्रायोरिटी क्या है। मुझे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स चाहिए जो मेरी कंपनी में काम कर सके, बाकी सारी चीजें बाद में। पहले तुम वो बताओ जो मेरे लिए रेलेवेंट है ना। सो पहले मैं हम अपनी रेलेवेंस की चीज बताएंगे। अब मेरे रेलेवेंस की चीज क्या है? प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप, सर्टिफिकेशंस। तो हम ये सब बताएंगे एकेडमिक्स। इसके बाद क्या बताएंगे? अचीवमेंट्स। भैया कभी जिंदगी में कहीं ना कहीं फर्स्ट, कहीं ना कहीं सेकंड, कहीं ना कहीं थर्ड तो आए होंगे ना। सब नहीं आएंगे, कुछ तुम में से आधे लोग तो आए होंगे, 1/4 लोग तो आएंगे यार, 7 लोग तो आए होंगे ना। 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं फर्स्ट आए होंगे, कहीं सेकंड आए होंगे, कहीं थर्ड आए होंगे। किसी ने ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया होगा, किसने एनटीएससी में पार्टिसिपेट किया होगा, किसने एमटीएससी में पार्टिसिपेट किया होगा और जीता होगा। किसी ने ओलंपियाड्स क्रैक किए होंगे। ये सारी चीजें बताने लायक चीजें है ना। अगर ये नहीं किया है तो कई लोगों ने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए होंगे, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में मदद की होगी, इवेंट्स हेड रहे होंगे, उसके ट्रेजरर रहे होंगे, कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज कॉलेज में निभाई होगी, वो बताओ। ये भी नहीं किया, कहीं पार्टिसिपेट तो किया होगा ना यार। और अभी सबसे अच्छा टाइम है पार्टिसिपेट करने। अभी के सारे कॉलेजेस जैसे आप देख लो, सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है और लोगों का मोरल है ना बहुत ही नीचे है पार्टिसिपेशन। राइट, पार्टिसिपेशन ही 3 कॉलेजेस से एंट्री आती है, एक ईच। तुम कुछ भी कर लो, थर्ड तो आ ही जाता है। राइट, तो ऐसा कॉलेज पकड़ो और ऐसे इवेंट्स पकड़ो जहां पर तुम जाओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कुछ मार लो। ये तुम्हारा प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करता है। अभी भी नथिंग इज लॉस्ट, इवन फॉर द फाइनल ईयर ग्रेजुएट्स। तुम जल्दी जल्दी कुछ ऑनलाइन पकड़ो, उसमें पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट करो। जीत नहीं रहे हो कोई टेंशन नहीं, पार्टिसिपेट करो। वो उसको मैग्नीफाई करके दिखा सकते हैं, मतलब कुछ है ही नहीं तो मैग्नीफाई क्या होगा? 0 into everything is 0 बाबा। राइट, सो मैंने बात की इवेंट्स, उसके बाद मैंने बात की पार्टिसिपेशंस की। ये मेरा एकेडमिक प्रोफाइल हो गया। राइट, इसके बाद क्या बताऊं सर? ज्यादातर केसेस में इसके बाद वो सवाल पूछ लेते हैं। अगर फिर भी नहीं पूछ रहे हैं तो अब तुम अपना फैमिली बैकग्राउंड बता सकते हो। उससे क्या होगा सर? उसमें क्या फायदा? उससे फायदा नहीं है। कुछ ऐसी चीज बताओ जिससे नुकसान ना हो। दिक्कत क्या होती है, मैं बता देता हूँ मेरा गोल क्या है। तुम्हारा गोल है बिजनेस स्टार्ट करना, फिर पूछता है यहाँ क्या कर रहे हो, है ना? तुम्हारा बिजनेस गोल होता है मैं एनजीओ स्टार्ट करूंगा, तुम्हारा गोल होता है मैं आईएएस बनूंगा, तुम्हारा गोल होता है कि मैं आईईएस बनूंगा, तुम्हारा गोल होता है कि मैं एमटेक करूंगा आगे जाके। अब तुम गोल बता देते हो तो फंस जाते हो। राइट, मैं नहीं बताना चाहूंगा ना अपनी इंट्रोडक्शन में जबरदस्ती में। क्यों? मैं देयर डिफरेंस बिटवीन आ बैल मुझे मार एंड रुक बैल में आता हूं मार खाता हूं। राइट, सो मैं कुछ तो कर ही नहीं रहा हूं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अब तुम्हें स्ट्रेंथ बताइए, खुद ही वीकनेस बतानी पड़ेगी। ये क्या बात हो गई यार? सो मेक्स नो सेंस टू मी। तो मैं क्या बताऊंगा? हार्मलेस चीजें। फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड हम 4 लोग हैं। पापा बिजनेसमैन है, मदर हाउसवाइफ है, भाई पढ़ रहा है या बहन पढ़ रही है, मैं पढ़ा हूँ घर में। And I come from a family of 4 that includes me, my father, my mother, and younger sister. My father is a businessman, mother is a housewife, sister is still studying. दिखता है कि all right, जिम्मेदार है, भागेगा नहीं, कैंपस नहीं करना। Right? So send across a profile. तुम में से कई लोग होंगे जिनके पेरेंट्स फार्मर है, एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं या काफी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं,
है ना, ये सारी चीजें बताने लायक होती। तुम्हें लगता है कि यार शर्म की बात है, जबकि समझो इससे तुम्हें एक एडवांटेज मिलता है। तुम में से कई लोग हैं जिन्होंने 11th 12th वर्नाकुलर मीडियम से किया है, मतलब या तो हिंदी या तो मराठी या तो कोई रीजनल लैंग्वेज में। हमें लगता है कि हमें बताना नहीं चाहिए। तुम समझो यार, इट अर्न्स यू रेस्पेक्ट जब तुम बताते हो। सो देन माय 10th and 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम, दैट इज मराठी, एंड देन आई डिड माय इंजीनियरिंग। ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। तुम समझो तुम्हें 8 पॉइंट है और किसी और को भी 8 पॉइंट है, तुम्हारे 8 पॉइंट में ब्रैकेट में वर्नाकुलर लिखा है, तुम्हें एडवांटेज देगा क्योंकि यू कम अ लॉन्ग वे। पापा फार्मर, मदर हाउसवाइफ, यू अर्न दैट रेस्पेक्ट, राइट? इससे कई सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं क्वेश्चंस के लिए। अब तुम में से कितने लोग हैं, प्लीज वाई टाइप करना, यस का वाई, है ना? तो तुम में से कितने लोग हैं जिनके फैमिली में आसपास इंजीनियर्स हैं? पापा इंजीनियर, या भाई इंजीनियर, या बहन इंजीनियर, या बड़े पापा इंजीनियर, राइट? सो देखो 3 4 5, सच अ लॉन्ग लिस्ट। अब तुम में से ऐसे कितने लोग रहे, माय गुडनेस, गुड 15-20 और पीपल यार, राइट? तुम समझो इतने सारे लोग। तुम में से कितने लोगों ने सोचा था कि मैं अपने इंटरव्यू में इस चीज को अपने एडवांटेज पे यूज करूंगा? क्योंकि सब लोग तो यही सोच रहे होते ना कि इंजीनियरिंग सबके साथ एक्सीडेंट ही हुआ है, गलती से इंजीनियर बना है ना? 10वीं में गलती से अच्छे मार्क्स आ गए तो घर वालों ने बोला कि बेटे साइंस लेना पड़ेगा, है ना? साइंस ले लिया तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं अभी आगे, तो बोले चलो ठीक है मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के फॉर्म भर दो। कुछ लोगों ने सिर्फ इंजीनियरिंग के फॉर्म भरे, जो मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों भरे। प्राइमरी गोल मेडिकल था, मेडिकल मिला नहीं, डेंटल मिल रहा था, सोचो उससे अच्छा इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। जिन्होंने सिर्फ इंजीनियरिंग भरा था उन लोगों ने प्रोसेस उल्टा फॉलो किया, है ना? उन्होंने इलेक्ट्रिकल के सेकंड ईयर में जाके समझ में आया कि अबे ये क्या इलेक्ट्रिकल, अपने को इलेक्ट्रॉनिक्स करना था। राइट? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स लेते समय कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि इलेक्ट्रिकल कौन सा आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सा आइटम है। और अभी भी तुम्हारे इंटरव्यू में, कैन यू इमेजिन, दे आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स? And good half of the students fail to answer this question. Start preparing yourself for these questions, buddies. Right? So, coming back, फैमिली बैकग्राउंड बताओ, और अगर वो रिलेटेड है तो उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करो, राइट? आखिरी में अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है तो बस अपनी हॉबी बताओ, अगर है तो। हमारे देश के आधे लोगों की हॉबी होती है स्पोर्ट्स, उसमें क्रिकेट ज्यादातर लोगों की और फुटबॉल बाकी बचे लोगों की, है ना? और अभी वो साइना आई है तो कुछ लोग बैडमिंटन में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, बट और कुछ तो होता ही नहीं है, राइट? या फिर म्यूजिक, राइट? अभी आधे देश की हॉबी यहाँ खत्म हो जाती है, बाकी सब टाइम पास चालू होता है। इसमें भी इनको कुछ पता तो होता नहीं है। तुम समझो, मैंने बोला कि तुम्हारी हॉबी ये है, तुमने खुद से होकर मुझे बताया कि तुम्हारी हॉबी है म्यूजिक। तो वो पूछता है, सो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू लिसन टू? और तुम्हारा जवाब क्या होता है? सर साइलेंट म्यूजिक। साइलेंट म्यूजिक क्या होता है? म्यूट करके सुनते हो सर, उसको सोलफुल म्यूजिक बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता मैं कौन सा म्यूजिक सुनता हूँ, सोचो, राइट? डांस तो पूछेगा सालसा क्या होता है, वैसा वाला डांस नहीं सर। तुम समझो इतने डिजास्टर्स होते हैं इंटरव्यूज में। मतलब मैं आज जीवन में खुश हूं क्योंकि मैं इंटरव्यूज लेता हूँ, तो उनकी बहुत सारी यादें मैं लेके जाता हूँ क्योंकि डिजास्टर्स आंसर्स आते हैं, राइट? एक कैंडिडेट बैठा, इंट्रोडक्शन दिया और हॉबी बताई चेस। उसका प्रोफाइल देखे मैं समझ में आ रहा था कि उसको चेस तो हॉबी है। मैं फिर भी उससे पूछा, शॉर्ट चेस इज योर हॉबी? यस सर। मतलब चेस में जो हाथी होता है, यस सर। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिफेंट सर। अरे डिजास्टर है दोस्तों, डिजास्टर, राइट? अब कोई बोल दे यार अच्छा कुछ बताना है ना, तो एक ने बोल दिया सर माय हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन। उसको पूछा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ रेवेन्यू स्टैम्प एंड अ पोस्टल स्टैम्प? अब ये भाई, नॉट दो स्टैम्प सर, डिफरेंट स्टैम्प। अरे राइट, सर डिजास्टर मत करो।
तुमने बोला है मेरी नहीं है तो नहीं है, खत्म ना, क्या दिक्कत है? और कुछ बोलना है तो उसके बारे में स्टडी करो। मेरी कभी कोई हॉबी रही नहीं वैसे, मगर जो भी हॉबी बोलनी होती थी मैं 4 पेज पढ़ के जाता था। मुझे पता है उसकी कौन सी वो हॉबी होने वाली है, उसने तो करना गूगल ही है ना। गूगल के पहले 5 पेज, मतलब पहले 5 लिंक्स, वो मैं भी पढ़ के जाता था। मैंने एक बार गार्डनिंग बोली, उसने मुझे पूछा व्हाट इज ह्यूमस, मेरे को पता चल गया सेकंड लिंक का पूछ रहा है। मैंने आंसर दे दिया। तो इट्स नॉट नेसेसरी, तुम प्रिपेयर होकर जा सकते हो ना, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू मस्ट नो इट। कई बार प्रिपेयर करना पड़ता है। मैं तुम्हें झूठ बोलना नहीं सिखा रहा हूँ, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यार अपने आप को पूरी तरह तैयार रखा जाए, राइट? तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। कैसे? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज हितेश। I'm basically from Nagpur, but I've been studying. I'm basically from Mumbai, but I've been studying in Nagpur for the last 4 years. I'm doing my engineering in the branch of computer science, yeah, electrical, right? I've also done a couple of projects. First was on a PLD, and the second was based on IC 555. Both the projects gave me a lot of learning. Besides that, I am also associated with an NGO where we try to help underprivileged children by teaching them. And I come from a small family of 4 that includes me, my father, my mother, and my younger sister. My father is an engineer as well. My mother is a housewife, and my sister is still studying. Thank you, sir. ये एक तरह का इंट्रोडक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन एक क्वालिफायर हुआ, ये इंट्रोडक्शन विनर नहीं हुआ। इस इंट्रोडक्शन से ये एंश्योर किया जा सकता है कि अपने यहां से इस सवाल पे रिजेक्ट ना हो, मगर इस सवाल से उसको मेरे अंदर इंटरेस्ट आ जाए, ये कैसे हो? हाउ डू आई एंश्योर कि उसे मुझ में इंटरेस्ट आ जाए यहां से? तो इंट्रोडक्शन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज हितेश, व्हिच मींस अ वेल विशर। I've been trying to live up to my name in the recent past by being associated with an NGO where we try to help underprivileged children by teaching them. Besides that, I've been also been pursuing my engineering in the branch of electrical. And so electrical didn't happen accidentally to me. It was an informed decision because my father too is an engineer. I grew up looking up to him, and hence engineering was an obvious choice. These 4 years have been a great learning experience where people from various cities and various corners of the nation have been coming together at an esteemed institution. And I've learned a lot of things from them. I've been a part of a couple of group projects as well where the learning was immense. So we have done some basic projects like PLD and IC 555, and they have been very relevant to the learning as well. That's it from my side, sir. Thank you. अब तुम समझो ये 2 स्क्रिप्ट में कितना सेम कैंडिडेट पहले वाले ने 5 लाइन बोल दी, दूसरे वाले ने पूरी लिंक्स बना के अपने आप को प्रेजेंट किया। आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप अपनी लिंक बनाओ, राइट? ये सारे सवाल आते हैं। तुम सोचो यार, तुम्हारे नाम का मतलब अगर तुम्हें नहीं पता है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है यार। तुम 20-22 साल से वो नाम लेके चल रहे हो, लोग तुम्हें उस नाम से बुला रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता कि उसका मतलब क्या है। अब कई लोग होते हैं जिनके नामों का मतलब ही नहीं होता। हमारा एक स्टूडेंट था, उसका नाम था खेमंत, KHEMANT। उसका नाम कोई मतलब ही नहीं, वो जस्ट हेमंत विद अ के। तो अब उसका नाम का मतलब था नहीं, तो उसे इंटरव्यूअर ने पूछा, और if you were to give a meaning to your name, what would that be? सोचो, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम ये सारी चीजें याद रखो। तुम्हारे नाम का मतलब, तुम्हारे सिटी की स्पेशलिटी, तुम्हारे ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये तो तुम्हारे बात करते करते तुम्हारी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तुम्हारे नाम जैसा कोई और है, if you're Rahul, then another Rahul. If your last name is Modi, some other Modis that they would be talking of. ये सब बैड सरप्राइज क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हारे पास, स्पेशली विद बिजनेस एनालिटिक्स कंपनीज जो तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा टेस्ट करना चाहती है, राइट? सिर्फ एक इंट्रोडक्शन इतना
इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। बोलने के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन है, बट देयर आर वेरियस एलिमेंट्स टू इट। अब ऑफ कोर्स कई बार सवाल थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं। कई बार वो पूछते हैं, टेल मी समथिंग दैट इज नॉट बीइंग मेंशन्ड इन योर रिज्यूमे। अब मैंने इतना बड़ा जो तैयार किया पूरा फेल, अब मैं क्या करूं? टेल मी समथिंग दैट्स नॉट मेंशन्ड इन द रिज्यूमे। ऐसे केस में मैं क्या जवाब दूं? ऐसे केस में अपने लाइफ का कोई एक एक्सपीरियंस शेयर करो जिसने तुम्हें कुछ सिखाया। जैसे आप अलग अलग लोकेशन से एसबीजे में, या आप लोकलाइट ही हो और हमें देखा कि एसबीजे में कई सारे शहरों से, स्टेट से लोग आए, तो आप ये बता सकते हो कि सर मैं 12th स्टैंडर्ड तक आसपास के मोहल्ले की कॉलेज स्कूल में पढ़ा, एंड देन व्हेन आई गॉट इनटू एसबीजे there were a lot of students coming from outside. Initially some sounded rude, I thought they were being too mean, but then over these years I realized that it's just the dialect that they carry, it's just the way that they speak, but they mean no harm. So I believe I've developed that emotional intelligence while dealing with people now. तो में से कई लोग हैं जिन्हें और जॉब्स करने पड़े 12th के बाद अपनी इंजीनियरिंग की फीस पे करने के लिए, तुम्हें ट्यूशंस लेने पड़े, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, और तुम आप अपने फाइनेंशियल बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। कुछ भी एक्सपीरियंस लाइफ में, कोई भी एक्सपीरियंस जिसने तुम्हें कुछ सिखाया है ना, वो एक्सपीरियंस तुम शेयर कर। ऑफ कोर्स जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए और कुछ सेंसिबल एक्सपीरियंस होना। ये मत बात करना कि सर देयर वाज दिस गर्ल जिससे मुझे प्यार हुआ था, प्लीज, राइट? सो इमोशनल नहीं होना। इनफैक्ट कई बार वो इमोशनल क्वेश्चन पूछते हैं, अपना कंपोजर मेंटेन करना, ना जबरदस्ती ज्यादा हंसना, ना जबरदस्ती रो देना, सिंपैथी सीकर नहीं करना, राइट? दैट ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? अब आधे देश की स्ट्रेंथ ऑनेस्ट, पंक्चुअल, डेडिकेटेड, ऐसी क्यूट स्ट्रेंथ्स नहीं चाहिए, है ना? पंक्चुअल नहीं रहोगे पगार काट देंगे। ऑनेस्ट रहना ही पड़ेगा, आजकल सब ऑनलाइन हो गया भाई। आपने ऐसा बोला था, नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था, तो आपकी रिकॉर्डिंग है, राइट? सो ये सब स्ट्रेंथ क्या होती है? जो आपको लगता है कि आपको करियर में आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल योर परसिस्टेंस, सर आई डोंट गिव अप वेरी इजीली, परसिवरेंट, सर आई राइज एवरी टाइम आई फॉल, राइट? मैं हाथ नहीं मारता। I am a quick learner, I have good listening skills, I have good leadership skills. I am an extrovert, मतलब जो लोगों से आसानी से घुलता मिलता है। तुम आइडेंटिफाई करो तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। तुम सबकी सेम स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, तुम्हारी कुछ खास होगी। अपनी 3 स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है तुम्हें, 3 स्ट्रेंथ्स, राइट? क्यों? 2 स्ट्रेंथ तुम यहां बताओगे तो पूछेगा व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, राइट? और एक स्ट्रेंथ तुम बताओगे जब वो तुम्हें पूछेगा व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, राइट? तो ऐसा नहीं बोल सकते सर एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इतनी कमी है तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ की तो तुम्हें पुराना रेफरेंस वापस लेना पड़ा, नॉट दैट, राइट? तो 3 स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करूंगा मैं। अब वो स्ट्रेंथ से रिलेटेड एग्जांपल्स भी तैयार रखूंगा कि कैसे वो स्ट्रेंथ मेरे काम आए। एग्जांपल नहीं है तो स्ट्रेंथ नहीं है, राइट? तुमने बताया स्ट्रेंथ, वो पूछेगा तुमसे कि वेयर डू यू थिंक इन योर लाइफ हैज दिस कम हैंडी, हैज दिस बीन यूजफुल? तुम्हें एग्जांपल तैयार रखना पड़ेगा, राइट? सो स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, वीकनेस सोच समझ के बोलो। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनकी वीकनेस है कि वो इमोशनल है? चैट में वाई टाइप कर दो, दिक्कत नहीं। प्राची, प्रणाली, प्रज्वल, इमोशनल, ये कोई वीकनेस थोड़ी हुई है, समझो। ये वैसे वीकनेस ही नहीं है ना, इमोशनल तो हर कोई होता है ना, कोई थोड़ा कम होता है, कोई थोड़ा ज्यादा होता है। तुम इमोशनल हो, तुम समझो, इससे तुम्हारे करियर में दिक्कत कैसे है, राइट? सो इमोशनल होना इज नॉट अ वीकनेस,
It's more often than not a good thing, shows that you're human. मगर वो तुम्हारी strength नहीं. हाँ, तुम बोलोगे सर I trust people very easily. ये weakness है. I don't trust people at all. ये weakness है. I have stage fear, weakness है. I'm weak at English, weakness है. Right? Sir, I cannot say no to anyone. ये क्या बात हो गई भाई? So मेरे इंटरव्यू में आई थी, so बोला सर I cannot say no to anyone. Are you sure? Yes sir. मैं बोला marry me. Sorry sir. I say yes. She said no sir. I see. Sir, I cannot say no easily to people who are very close to me. अब बोल marry me. Right? So अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अब कुछ भी बकवास स्ट्रेंथ वीकनेस बता रहा है. आई एम फ्लेक्सिबल. पाइप है तू, अडेप्टेबल होता है भाई, फ्लेक्सिबल नहीं. मतलब मैं अपने जीवन काल में सिर्फ 2 बार आंख में आंसुओं के साथ हंसा हूं. ऐसा किडनी विडनी दर्द कर रहा है. जिस दिन ये आई थी ना 8085 वाले, मेरे को बड़ा मजा आ गया. मैं बोला ये वाले कैंडिडेट्स बहुत भारी होने वाले हैं. तो मेरे सीनियर्स भी बैठे थे, तो मैंने सर को बोला सर आज स्ट्रेंथ वीकनेस प्लीज सबसे पूछेंगे. मैं बोला ठीक है. तो थोड़ी देर हो गई, एक कैंडिडेट आई, उससे पूछा व्हाट्स योर स्ट्रेंथ. वो बोली सर रिप्रोडक्शन. क्या रिप्रोडक्शन? 1.5 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, मैं ऐसा किडनी विडनी दुख रहा है, मेरा चश्मा उतार के आंसू निकल रहे हैं मेरे. सॉरी मैं उसके सामने ही हंस रहा था, बट मैं क्या करता. तो मैंने ऐसा चश्मा उतारा, आंसू पोछे और बोला बेटा तू हिंदी में बोल, क्या बोल रही है. तो बोलती सर आप जो भी बोलोगे ना वो मुझे याद हो जाएगा. बोला बेटा उसको रिटेंशन बोलती, मुझे हैला हास. क्या हैला? राइट. सो प्लीज बी केयरफुल. उसके ठीक 1 घंटे बाद उसका एक पति वर्जन आया ना, तो उसको बोला व्हाट्स योर स्ट्रेंथ. तो बोलता है सर माय स्टैमिना. मतलब मेरे को काय को बता रहे हो तुम लोग ये सब? व्हाट स्टैमिना? राइट. सो प्लीज आई रिक्वेस्ट, सोच समझ कर अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस आइडेंटिफाई करो और फिर वो बोलो. राइट. इट्स वेरी क्रूशियल दैट यू पुट फॉरवर्ड द राइट वर्ड. ना उसके इंटरप्रिटेशंस बहुत निकल सकते हैं. राइट. जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर शॉर्ट टर्म गोल या व्हाट्स योर लॉन्ग टर्म गोल? So there has been a question posted, what is more important to you, high what? Prajwal, high salary, is that what you want to say? Oh, high rank job or a job satisfaction. Okay. I'll come to this question. Keep your question alive. जब हम Q&A करेंगे, high salary. Okay. So keep this question alive. मैं इसको आखिरी में address करूँगा once I'm done with the basic FAQs. है ना? So yes, as I was saying, कि short term and long term goal की हम बात कर रहे थे. Yes. So शॉर्ट टर्म गोल का मतलब होता है 3 से 5 साल बाद अपने आप को आप कहां देखते हो. राइट. और लॉन्ग टर्म गोल होता है कि 7-1 साल बाद अपने आप को कहां देखते हो, 7 से 10 साल बाद. राइट. तो शॉर्ट टर्म में कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे कंपनी स्टार्ट करनी. भाई तो फिर अभी चालू कर देना. शॉर्ट टर्म समझो, अभी तुम नौकरी लगेगी, उसके 6 महीने बाद ज्वाइन करोगे, उसके 1.5 साल बाद तुम ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी कहलाओगे. 2 साल बाद तुम्हारा जॉब कंफर्म हो गया होगा अभी के बाद, अब से बाद. उसके बाद तुम असिस्टेंट इंजीनियर या प्रोग्रामर या जो भी कहलाओगे. उसके 1 साल बाद तुम सीनियर इंजीनियर, टीम लीड या ऐसा कुछ बनोगे. वो देखना चाहते हो तुम कितने रियलिस्टिक हो. तुम उसको सर 3 से 5 साल बाद मैं एक छोटी टीम ऐड करना चाहता हूँ. I look at myself, I'm heading a small team and trying to contribute something to the organization in a positive way. I want to become a successful engineer. Must. I want to become a successful human being. पापा को कार लेके देनी है, मम्मी को घर लेके देना. अबे खुश नहीं करना, उसको रिलेवेंस दिखाना है.
राइट? 10 साल बाद क्या करना चाहते हो, जो बोलना है बोलो। जो बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे करोगे? मुझे अभी सोचा नहीं है, पर सोच रहा हूँ कि कभी ना कभी लाइफ में जाके बिजनेस स्टार्ट करूंगा। नहीं सर, एक कंपनी हेड करनी है, तो कैसे करोगे सर? वो नहीं पता। प्रैक्टिकल वर्ल्ड का एक्सपोजर लूंगा, फिर शायद समझ में आएगी कैसे करना चाहिए। अगर फिलहाल तो ये ऑब्जेक्टिव है दैट व्हाटएवर आई हैव लर्नड आई वांट टू एग्जीक्यूट इट राइट नाउ, राइट? फोकस दिखना चाहिए, तुम्हारे आंसर सुलझे हुए होने चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि योर थॉट प्रोसेस इज रिफाइंड, राइट? तो ये एक बेसिक चीज हो गई। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंट्रोडक्शन, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम। फिर कई बार सवाल आता है, व्हाई डू यू विश टू जॉइन आवर कंपनी, ये हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो आप? उसमें बोलते हो गुड कंपनी, हमको तो पता ही नहीं, बेस्ट कंपनी। अच्छा, बाकी तो पागल है, राइट? सो व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी? हर कंपनी एक प्री प्लेसमेंट टॉक देती है, पीपीटी कहते हैं इसे। उस प्री प्लेसमेंट टॉक में कंपनी अपने बारे में भी बताती है, मतलब आजकल तो ऑनलाइन वीडियो शेयर कर देते हैं वो लोग पोर्टल पे, और आपको वीडियो देखने बोल देते हैं, और प्रोफाइल के बारे में भी बताते हैं। सो आइडियली आपको कंपनी के बारे में बात ना करते हुए पहले प्रोफाइल के बारे में बात करें। सर, आपने जो प्रोफाइल डिस्कस किया, मैं उस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हूँ, आई लाइक दैट प्रोफाइल एंड आई लुक एट माई सेल्फ वर्किंग वेल इन दैट प्रोफाइल। उसके बाद तुम उस कंपनी की थोड़ी बहुत तारीफ कर सकते हो कि इतनी पुरानी कंपनी है तो इतना एक्सपीरियंस होगा, तो मुझे लर्निंग बहुत मिलेगी, या कंपनी रिलेटिवली न्यू है तो बहुत एग्रेसिव होगी, तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को पूरी तरह यूटिलाइज कर पाऊंगा। एनालाइज द कंपनी, तुम क्या बोलोगे? इस कंपनी के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, तो मुझे क्रॉस कल्चरल, क्रॉस डिपार्टमेंट, क्रॉस वर्टिकल लर्निंग्स की बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सारी चीजें कंपनी को लगना चाहिए कि तुम जेन्युइनली वो कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि रैंडमली बस डिसाइड कर लिया कि हाँ इसका आया है लेटर, चलो बैठ तो जाते, देखेंगे रिजेक्ट होते कि सिलेक्ट। ऑफ कोर्स तुम्हारा प्लान वो है, बट उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए, राइट? सो व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू भी हो गया, एंड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी भी हो गया। अब कई बार तुमसे पूछते हैं हु इज योर रोल मॉडल, भैया है तो है, नहीं है तो नहीं है। फैमिली मेंबर्स को रोल मॉडल नहीं बोलते आइडियली, अनलेस मतलब जेन्युइनली तुम उसमें विश्वास करते हो, है ना? मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लगभग सभी के पापा उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, वो तुम्हारे रोल मॉडल क्यों है? ये कोई रीजन नहीं हुआ, ये रीजन हुआ उन्हें एडमायर करने का, उनकी रेस्पेक्ट करने का। पापा क्या करते, बोले बिजनेस कर रहे हो, तुम भी जाओ बिजनेस करो, बोले हाँ अगले साल। राइट? सो डोंट डू दैट। जेन्युइनली है यार बॉस, यू हैव सीन हिज हार्डशिप्स, तुमने देखा है कि कैसे उन्होंने एक एक्स लेवल से वाई लेवल से जेड लेवल तक अपने आप को पहुंचाया, और तुम्हें लगता है कि इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, तो बिल्कुल वो तुम्हारा रोल मॉडल है। मगर ऐसा कुछ नहीं है, डज नॉट मीन कि तुम उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते। इट्स जस्ट दैट रोल मॉडल पूछ रहे हैं, किसके पद चिन्हों पर चल के तुम वहां तक पहुंचना चाहते हो। बोले सचिन तेंदुलकर इज माय रोल मॉडल, बोले वो तो क्रिकेट खेलते, बोले हाँ सर, तुम क्यों नहीं क्रिकेट खेलते? बोले सर मेरा रोल मॉडल इसलिए नहीं है क्योंकि वो क्रिकेट खेलता है, ही इज माय रोल मॉडल बिकॉज ही बिकेम द गॉड ऑफ क्रिकेट, ही वाज कॉल्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट व्हाइल ही वाज प्लेइंग इट। So I think it's a very big thing to be called a god of some domain while being in that domain, not after dying, but while you're still there. So I think it's a very rare trait. The consistency, the dedication that he has is something that I aspire to have in myself as well. Right? So रोल मॉडल जरूर नहीं है कि, और उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है, ऐसे पूरा उसका पार्ट लर्न हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? वो तुमसे सवाल पूछते रहेंगे, अच्छा तो उसने डबल सेंचुरी कौन सी ओडीआई डबल सेंचुरी कौन सी टीम के अगेंस्ट मारा था, कौन से ईयर में मारा था, उसके बेटे का नाम क्या है, उसकी बेटी का नाम क्या है, उसने डेब्यू कब किया था। जरूर नहीं है कि तुम्हें सब कुछ पता हो यार, वो तो देखना चाहते तुम कहाँ जाके टूटते हो, वो तब तक सवाल पूछते रहेंगे जब तक तुम्हें गलत जवाब नहीं देते। उसके 5 सवाल के बाद उनको रियलाइज हो अच्छा पता है, बोलते 3 सवाल के बाद बोले ठीक है ठीक ठाक पता है,
रोल मॉडल सही में है, राइट? सो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कुछ जिनको आपको एड्रेस करना होता है, राइट? इसके अलावा कई ट्रिक क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे आप कह रहे हो कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू, हायर सैलरी और जॉब सेटिस्फैक्शन, राइट? तो ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन के अंदर सब लोग यही बोलते हैं कि सर job satisfaction, which is the right answer as well, right? Everyone is in the domain because she wants to derive satisfaction from that job. सैलरी 3 महीना मिलेगा फिर छोड़ देंगे, तो वो बोलेंगे अच्छा फिर तुम 5,000 में भी काम करोगे क्या, ताकि अगर ऐसी कंपनी में जॉब सेटिस्फैक्शन दे तो? बोले सर जॉब सेटिस्फैक्शन का एक एलिमेंट सैलरी भी तो है ना। अब जॉब सेटिस्फैक्शन मतलब मुझे तुम, अब जैसे मैं हूँ ना, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, दीवानों की तरह पसंद है पढ़ाना। मैं सुबह 6:30 बजे भी ले सकता हूँ, रात को 11:30 बजे भी लेक्चर ले सकता हूँ, राइट? बट तुम बोलोगे भाई इसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा ना, तुम्हारे कमाई वमाई का सोर्स खत्म हो जाएगा, तो मैं सारा दिन ही काम कर पाऊंगा क्या यार? मेरे परिवार को मुझे पैसे देने हैं, मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा एक सोसाइटी में स्टेटस है, उसको केटर करना है ना। तो अगर मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, फ्री में पढ़ाना पड़ेगा, तो जॉब सेटिस्फैक्शन कहां से आएगा? A decent salary, I am not greedy for high salary, but a decent salary is something certainly which becomes a part of job satisfaction, is what you should answer. Right, Prajwal, I believe I have addressed your question. Yes, sir. So, great. अगले और कई ऐसे सवाल होते हैं जो कई ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं that may come your way, है ना, जहाँ पे तुम्हें लगे कि सर इसका क्या जवाब देना चाहिए, है ना? तो ऐसे केस में I always I recommend कि तुम सही सोच समझ करके, जैसे तुमको बोलते हैं which is your dream company, एक बार they ask you which is your dream company, अब उसका नाम ले तो बोले तुम झूठ बोल रहे हो, और किसी और कंपनी का नाम ले तो बोलता है कि फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब मैं उसको क्या बोलूँ, 3-4 साल आप क्या काम करके वहां जा रहा है, मुझे नहीं हो सकता ना। So it becomes very important कि तुम आंसर बहुत सही तरीके से करो। How do you answer it right? कंपनी की बात ही मत करो। Any company that gives me the opportunity to learn better, provides me a platform that helps me grow, and also lets me explore the domain, is something that I would want to be a part of. Right? So तुमने क्या किया, प्रोफाइल एक्सप्लेन किया, और उस प्रोफाइल की वजह से तुम कोई भी कंपनी में काम करना चाहोगे। तो ड्रीम कंपनी तो ऑफ कोर्स प्रोफाइल से ही बनती है ना। आपको तुम में से कुछ लोग बोलते हैं सर गूगल में काम करना, बोले वहां पे सिक्योरिटी गार्ड काम ले करोगे, नहीं सर, तो ड्रीम कंपनी नहीं होती ना, ड्रीम प्रोफाइल होता है, उस चीज पे फोकस करेंगे हम, राइट? सो अदर क्वेश्चंस, डू यू हैव अदर क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहोगे? यू कैन क्विकली टाइप देम, राइट? इन द मीनवाइल, सो दीस आर द मेजर क्वेश्चन दैट दे आस्क यू, राइट? इसके अलावा हमें आज रेज्यूमे के बारे में भी बात करनी है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज write them down. I'll just try to share something. Can you see the screen? Yes, sir. Perfect. Right. So I want to talk about resume now. Right. Now, of course, a standard structure suggests now when we talk of a resume, one second. Some problem with the pen. So when we talk of a resume, how is it different from a CV, right? तो CV जो होता है वो मिनिमम 2 पेजेस का होता है, और रेज्यूमे जो होता है वो मैक्सिमम 2 पेजेस का होता है, राइट? और CV जो होता है वो वर्कएक्स वालों का बनता है आइडियली, right? So people with work experience have a CV because it's a detailed description, right? Whereas a resume is for freshers,
तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो जाता है रेज्यूमे और सीवी में। तो हमें रेज्यूमे बनाना होता है आइडियली, ठीक है। सो आवर फोकस इज यूजुअली ऑन द रेज्यूमे। इसलिए तुम्हें कभी लिखना भी नहीं पड़ता है कि मतलब जब आप रेज्यूमे बनाते हो तो ऊपर कई लोग लिखते हैं ना रेज्यूमे करिकुलम विटे, तो उसकी जरूरत नहीं है, राइट। सो इफ यू लुक एट अ रेज्यूमे, द स्टैंडर्ड आइडिया ऑफ अ रेज्यूमे, आई एम टॉकिंग ऑफ अ सिंगल पेज और अ डबल पेज रेज्यूमे, दो तरीके से ये होता है कि आप अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ईमेल आईडी बीच में लिखो, या कई लोग ऑन दी राइट हैंड ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, राइट। इसके बाद नीचे आता है ऑब्जेक्टिव, है ना। अब ऑब्जेक्टिव कई लोग ऑनलाइन कॉपी कर लेते हैं, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग, है ना। ऑब्जेक्टिव कई बार वो पूछते हैं कि यार आपने ये ऑब्जेक्टिव क्यों लिखा है, उस ऑब्जेक्टिव को अच्छे से फ्रेम करके लिखो, समझो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि भैया तुम इस इंटरव्यू में क्यों आए हो। So seeking an opportunity to explore the domain of electrical engineering and utilize my skills in the best possible way. Desired a profile with growth opportunity. ऐसा कुछ, something that is more relatable, right? So objective means कि इंटरव्यू में क्यों आए। उसके बाद academic background, ठीक है। अब academic background में अब कई लोग होते हैं जो लिखते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसको ऐसा मत लिखा करो, एकेडमिक बैकग्राउंड लिखो। उसके अंदर ऑफ कोर्स तुम 4 पार्ट्स में उसको बना सकते हो। अब इसमें क्या लिखते हैं एकेडमिक बैकग्राउंड के अंदर, पहला क्वालिफिकेशन, राइट। उसके बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी मेजरली, राइट, चैलेंज यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद परसेंटेज सिक्योर, राइट, ये 4। इसके बाद प्रोजेक्ट्स, राइट। प्रोजेक्ट्स के बाद तुम लिखते हो अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स के बाद नेक्स्ट पेज पे अगर तुम्हारा जेन्युइनली इतना अच्छा है तो नेक्स्ट पेज पे पार्डन माय प्रेजेंटेशन स्किल्स, अचीवमेंट्स के बाद नेक्स्ट पेज पे यू मेंशन योर पार्टिसिपेशन, ठीक है। पार्टिसिपेशन के बाद योर पर्सनल डिटेल्स, राइट। इसमें फादर्स नेम, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज इज नोन एंड एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन अगर वो अलग है तो, राइट। उसके नीचे फिर यहाँ पर डेट, प्लेस and your signature, right? Ideally ये स्ट्रक्चर होता है, राइट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वरना मैं आपके साथ मैं आपकी टीम में जिन्होंने मुझे कोऑर्डिनेट किया था मैं उनके साथ सैंपल रेज्यूमे शेयर कर दूंगा जो आप देख भी सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द आइडियल थिंग दैट हैपेंस। अब इसके अंदर ये तो डूज हो गए, अब हम बात करते हैं डोंट्स की। ये थे डूज, लेट्स टॉक ऑफ द डोंट्स। 1, रेज्यूमे को कभी बॉर्डर नहीं देखते, इट्स अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, है ना, वो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो रेज्यूमे को बॉर्डर नहीं देते कभी भी। 2, रेज्यूमे के ऊपर रेज्यूमे नहीं लिखते, उसको मालूम है वो रेज्यूमे क्योंकि तुम फ्रेशर हो, राइट। 3, एक रेज्यूमे कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, हमेशा इट हैज टू बी इन ब्लैक एंड व्हाइट, कभी भी कलर नहीं होता। अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट इट इज, समझ रहे हो, इट शुड नेवर बी इन कलर, इट शुड ऑलवेज बी इन ब्लैक एंड व्हाइट। हेंस तुम कितने भी अच्छे पेपर में प्रिंट आउट ले लो, प्लीज एंश्योर करो कि उसका प्रिंट ब्लैक एंड व्हाइट ही लो।
कई बार क्या होता है वो ईमेल आईडी लिखने में हाइपरलिंक आ जाता है, तो उसको तुम रिमूव करना भूल जाते हो, तो ब्लूप्रिंट आ जाता है, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट करो, राइट? प्लीज गेट अ डिसेंट ईमेल आईडी, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को पता नहीं क्या क्या है यार, sweetgirlneha@gmail.com और न जाने क्या क्या है ना, रिकी द रॉक स्टार, प्लीज ये मत करो, ठीक है? सो हैव अ डिसेंट ईमेल आईडी जो यूज किया जा सके, एंड हैव अ प्रॉपर परमानेंट आईडी, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा नीचे डिक्लेरेशन की कोई जरूरत नहीं है, तुम कोई गवर्नर वार्नर आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू टू माय नॉलेज, के लिए चाहिए, राइट? चुपचाप डेट प्लेस साइन डालना, सफिशिएंट इनफ दैट यू अप्रूव ऑफ इट, राइट? फोटो लगाना है या नहीं सर, नो कंप्लीटली डिपेंड्स, अगर उन्होंने मांगा है सर रेफरेंस डालना है या नहीं, उन्होंने मांगा है तो दो। फोटो आई रिकमेंड कि तुम स्टिक करो, पेस्ट करो। कई बार क्या होता है कैंडिडेट्स का नाम याद नहीं रहता, अगर फोटो देख के याद आ जाता है कि हाँ इससे बात हुई थी, तो ये मिस ना हो, इसलिए फोटो लगाना अच्छी चीज है, राइट? सो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग कि तुम फोटो लगाओ। So that's majorly all about the resume that I wanted to talk of. Any other questions, any queries that you want to ask further? You can unmute yourself and then ask anyone. आजकल तो इंटरव्यूज ऑनलाइन ही हो रहे हैं मेजरली, राइट? एंड हेंस प्लीज ये ध्यान रखो कि तुम्हारा बैकग्राउंड सही हो, या तो फिर जैसे मैंने एक वॉलपेपर लगाया है तो आप वैसा कोई इमेज डाल दो which is again very plain, very clean, right? Doesn't create much of ruckus, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस दैट यू आर इन अ क्लोज्ड रूम, बहुत लोग आ नहीं रहे हैं, बाहर से आवाज नहीं आ रही है, इन चीजों को इंश्योर करो, राइट? भले ही ऑनलाइन हो मगर इंश्योर दैट यू आर क्लीन शेव, मेरे जैसा नहीं, मेरा तो कुछ है नहीं, राइट? बट तुम क्लीन शेव रहो, प्लीज शर्ट पहनो, नीचे क्या है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, शर्ट पहनो, टाई पहनो, ब्लेजर की जरूरत नहीं है, मगर शर्ट और टाई अच्छा लगता है, सेंड्स अक्रॉस अ गुड इंप्रेशन, राइट? सो शर्ट एंड टाई आर गुड थिंग्स। उसका नॉट सही और नीचे तक तो पूरा दिखता नहीं है, मगर ऊपर का नॉट उसका छोटा सा मुंह बड़ा, ऐसा बड़ा समोसा, इट्स नॉट अ गुड थिंग। ढंग का, तुम्हें नहीं आता नॉट बांधना, किसी और से बनवाओ, बट ढंग का पहनो, राइट? क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है तो सामने वाले को अपना पॉइंट खत्म करने दो, पेशेंटली फिर आंसर करो। जब भी इंटरव्यू में बोलो गुड मॉर्निंग सर, उसके साथ ये भी बोलो सर एम आई ऑडिबल, राइट? ताकि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा माइक अनम्यूट किया तुमने, नहीं किया, क्या है, राइट? ये सारी चीजें बेसिक तुम्हें कुछ एक्सप्लोर करनी है, बियॉन्ड विच आई बिलीव थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बन जाएगा। इनकेस अभी जैसे अगर आप शर्मा रहे हो सवाल पूछने में, किसी ने पोस्ट तो किया नहीं है क्वेश्चन, बट इन केस you have any questions, any queries, my name is Hitesh Devani. You can get connected to me any way you want, right? I am sharing my contact number as well, right? अगर कोई भी query, कोई भी question, कोई भी feedback है, that's my number. It's 9970143006. My name is Hitesh Devani again. Anywhere, LinkedIn, Indeed, Blogspot, Twitter, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहां कनेक्ट होना है कनेक्ट हो जाओ। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज फील टू गेट इन टच विद मी। आई होप ये 1 घंटा आप सभी के लिए फ्रूटफुल रहा एंड देयर वाज सम नॉलेज दैट यू आर एबल टू गेन, और आपको एक सही दिशा मिल पाई। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू द कोऑर्डिनेटर। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for your presence. It will really help us for creative resume writing. I hope you all enjoying the session and it will help you for your unique and creative resume. Now, I would like to present a letter of appreciation to our speaker, Mr. Hitesh Devani, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Now, I would like to thank all the faculty of SBJAN Institute of Technology Management and Research, Nagpur, for giving us such kind of opportunity, and great appreciation for Elan Committee for their constant effort. Once again, thank you all. Have a nice day ahead. Thank you guys. All the best. I hope you enjoyed the session. Thank you so much. Bye bye. And guys, please fill the feedback form
how do you make the learning more effective? Yeah. Sorry? So just discuss your strategy. Yeah. Thank you guys. Bye. Bye-bye.